You have no one to undo your burdens to. He was moved with compassion and he spoke to them words of comfort, words of grace. He never condemned anybody. With everlasting love, I will have compassion on you, says the Lord your Redeemer. तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है, परंतु अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं। He came to earth just to show his love to humanity. वो मानव जाति को अपना प्रेम दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। And when he came amongst the people, जब वो लोगों के बीच में आए, he saw that they were like sheep without a shepherd to care for them. उसने देखा कि वो तो ऐसी भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए। He was moved with compassion. और उसने उन पर तरस खाया। And he spoke to them words of comfort. और उसने उनसे बड़े तसल्ली के शब्द कहे। Words of grace. अनुग्रह के वचन कहे। He never condemned anybody. किसी के ऊपर कभी कोई दोष नहीं लगाया। He said, "Come to me, all you that labor and are heavy laden." उसने कहा है सब बोझ से दबे लोगों और थके लोगों मेरे पास आओ। You have no one to undo your burdens to. तुम्हारे पास कोई नहीं है जो तुम्हारे बोझ को दूर कर सके। Come to me. मेरे पास आओ। I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। And he laid his hands on everyone who was sick. और उसने हर एक बीमार के ऊपर अपने हाथ रखे। And he healed them. और उन्हें चंगाई की। He raised the dead. उसने मुर्दों को जिलाया। He fed the hungry. उसने भूखों को भोजन दिया। Being moved with compassion. और उसने उन पर करुणा की, तरस खाया। And finally he gave his life on the cross that everyone's sins may be forgiven. और आखिरकार उसने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया ताकि हर एक के पाप क्षमा किए जा सके। So that by the blood of Jesus everyone's sin can be washed away and cleansed. ताकि यीशु के लहू के द्वारा हर एक के पाप धो दिए जाए, शुद्ध किए जाए। Jesus has the same compassion to make you live also. पर प्रभु यीशु यही करुणा आप पर भी करते हैं कि आप भी जीवित रहें। Because of his everlasting love, his compassion will flow into you and resurrect your life again. उस करुणा के कारण ही वो आपका उसका जीवन आप में बहते चले जाएगा और आपको फिर से वो जीवित करेगा। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। There's a beautiful testimony of Brother Ravinder from Mumbai. भाई रविंदर जो मुंबई के हैं उनकी ओर से एक सुंदर गवाही आई है। He had chronic stomach illness for 3 long years. 3 साल से उनके पेट में बहुत दर्द हुआ करता था। Couldn't eat properly. वो अच्छे से खा नहीं सकते थे। Used to vomit everything. और हमेशा उल्टियां होती थी। He received so many treatment but no medicine could help him. उन्होंने बहुत सा उपचार करवाया लेकिन किसी दवाई से उनका कोई लाभ नहीं हुआ। He became skin and bone. और वो बिल्कुल दुबले पतले हो गए। He was working for a printing press. वो एक प्रिंटिंग प्रेस के लिए काम करते थे। Because of his ill health, he could not perform his duties. और इनकी तबीयत बिगड़ने के कारण वो अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाए। One day the owner rebuked him for his bad performance. एक दिन मालिक ने इनके बीमार होने के कारण, इन्हें न आने के कारण बहुत बुरी तरह से डांटा। He was vexed with life and contemplated suicide. और ये तो अपने जीवन से तंग हो चुके थे और ये तो आत्महत्या करना चाहते थे। He went to the beach in Mumbai and was searching for a place to jump on the sea rocks and end his life. और वो तो मुंबई के बीच पर गए और किसी समुद्र की चट्टान पर गिरकर अपने जीवन को अंत करने की कोशिश कर रहे थे। At that moment he got a call from someone saying, "Go to Jesus Calls Bandra Prayer Tower." और उस समय किसी ने उन्हें फोन किया और उनसे कहा जीसस कॉल्स बैंड्रा प्रेयर टावर को जाओ। He never knew anything about Jesus. वो यीशु के बारे में कुछ नहीं जानते थे। Never knew anything about Prayer Tower. प्रेयर टावर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। He ignored the call and was searching for the place to commit suicide. और वो तो उस कॉल को अनदेखा करने लगे और आत्महत्या करने के लिए जगह ढूंढने लगे। The call came again और वो कॉल फिर से आया and said, "Go to Jesus Calls Bandra Prayer Tower." और कहा कि जीसस कॉल्स बैंड्रा प्रेयर टावर में जाओ। He went there. वो वहां पर गए। The prayer warrior welcomed him with God's love and compassion. प्रेयर वॉरियर ने परमेश्वर के प्रेम और करुणा के साथ में उनका स्वागत किया। Ravinder poured out his heart and cried to him. रविंद्र ने अपना हृदय उंडेल दिया और उसके सामने रोने लग गए। And the prayer intercessor prayed for him in the name of Jesus.
उस प्रार्थना मध्यस्थ ने उनके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना की। That night he could eat his dinner in peace. और उस रात वो रात का भोजन बड़ी शांति से कर पाए। No vomiting. कोई उल्टियां नहीं हुई। He slept peacefully. वो बड़ी शांति से सोए। He got up in the morning. सुबह के समय जल्दी उठे। Felt absolutely healthy. बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस किया। The stomach illness had gone away. पेट की जो बीमारियां थी वो सब चली गई थी। This miracle touched his heart. और इस चमत्कार ने उनके दिल को छू लिया। And he came to the prayer tower. और वो प्रेयर टावर में वापस आए। And surrendered his life to the Lord. और अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। His whole health was restored again. और उनकी पूरी सेहत फिर से अच्छी बनाई गई। He started with great zeal to work in his company again. और वो बड़ी जिज्ञासा के साथ में अपने कंपनी में फिर से काम करने लगे। Seeing his performance, he was promoted as manager in his company. और उनके काम को देखकर उनकी कंपनी में उन्हें मैनेजर के रूप में प्रमोट किया गया। Today he is a volunteer in the Jesus Calls Prayer Tower, आज वो जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में एक वॉलंटियर हैं। supporting the mission to pray for others. दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने के इस मिशन में सहायता प्रदान कर रहे हैं। God's everlasting love. परमेश्वर का अनंत काल का प्रेम। Oh, through his compassion, he will set everything right for you. और अब वो अपनी करुणा के द्वारा आप पर दया करेगा, सब कुछ सही करेगा। Father, पिता, I pray this grace upon everyone who is watching now. मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति जो देख रहे हैं उनके ऊपर यह अनुग्रह होने पाए। Anoint them with thy Holy Spirit. इन्हें अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक दीजिए। Transform their life. इनके जीवन को बदल दीजिए। Everything that is troubling them, let it leave in Jesus' name. हर एक बात जो इन्हें परेशान कर रही है यीशु के नाम में चली जाए। Give them good health, इन्हें अच्छी सेहत दीजिए, strength, इन्हें बल दीजिए, wisdom, बुद्धि दीजिए, grace to perform, काम करने के लिए अनुग्रह दीजिए and a blessed future. और बहुत ही आशीषित भविष्य दीजिए। Nothing should ever touch them. कुछ भी इन्हें छूने न पाए। Cover them under your blood इन्हें अपने लहू से ढाक कर रख। and let them surrender to you and be made as your children. प्रभु ये आपको समर्पित हो जाए और आपकी संतान बनाई जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।